Hello, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to understand about the concept of leaderships, its meaning, approaches and theories. The leadership equation L is equal to F E F S. So, L is the leadership, the process. F is the follower, employees, subordinates. EFS is the situational characteristic, employee needs and attitude, organizational feature, socio-economic, political influence. So, leadership is the process of influencing individual को influence करना और group toward achievement of goals in a given time and situation. According to McGregor, leadership is not static, it is dynamic. It is a function that varies depending on the need, that is F follower पे, and the situation S. So, why do some leader inspire people while others only give orders? Is leadership about power or about people? So, according to managerial leadership equation, leadership is dynamic process resulting from the interaction of leaders' characteristic, follower need and attitudes and the situational context. So, good leadership is knowing who you are leading, किसे आप लीड कर रहे हो. What they need, उनको क्या चाहिए, need and when to act, कब एक्ट करना है. मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड वाई दी है. एक्स एंड वाई, एक्स इज बेसिकली अथॉरिटेटिव, फॉलोज अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल एंड वाई फॉलोज डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल. इसमें जो पीपल हैं दे आर इररिस्पॉन्सिबल, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल डिसलाइक वर्क, एंड इन वाई case work is as natural as play. People can self-direct like and responsibility. So McGregor has also given X and Y theory. Core function of leadership. So what are the core function of leadership? Promoting team spirit को promote करना, developing healthy work climate for effective performance के लिए, linking pen जो है टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में लिंक जो है वो क्रिएट करना, देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, गिविंग डायरेक्शन टू द काउंसलिंग सेशन एंड एम्प्लॉयज. फोर्थ इज टाइम मैनेजमेंट, फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव टाइम एलोकेशन. फिफ्थ इज मोटिवेशन, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव reinforcement and stimulating interaction. This is basically giving appreciation to motivate. Then sixth one is इन्वायरमेंट क्रिएशन, डेमोक्रेटिक वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लीडरशिप. द मैकेनिक्स ऑफ पावर. व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस others' behavior. This is based on French and Raven framework. So, positional power boss की ये है and the personal power the person की ये, expert power, referent power. So, French and Raven given the 7 types of power: legitimate power, reward power, coercive power, expert power, referent power, बाद में ये add हुई थी, information and connection power. Legitimate power, formal right to take demand and expect compliance. This is power of position. Power of position. Position की power. For example, student listen because she is a teacher. So जो mechanics है वो position को authority provide करा रहा है obedience के लिए. So people comply because they accept the role, not the person. So इन्होंने role को accept किया है, ना कि person को accept किया है. वो teacher है इसीलिए उसको जो है वो सुन रहे हैं. So, reward power is ability to compensate another for compliance. This is power to give benefit. For example, if you finish your homework, then I'll give you extra screen time. So,
This is the desired reward is given to motivation and that leads to compliance. So people follow to gain something positive. Coercive power is power based on fear of punishment. fear of punishment पे जो power based है. एग्जाम्पल, ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस से क्यों डरते हैं? सो फियर ऑफ फाइन और लाइसेंस सस्पेंशन के लिए. सो ये जो है कोर्सिव पावर है, एबिलिटी टू पनिश फॉर नॉन कंप्लायंस. रिसोर्स पावर इज कंट्रोलिंग एक्सेस टू असेट, असेट को कंट्रोल करने की पावर जो है. एक्सपर्ट पावर बेस्ड ऑन सुपीरियर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की पावर है. ये एग्जाम्पल कि डॉक्टर जो है अगर उसकी एडवाइस को हमें फॉलो करना है क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर नोज मोर देन अस. ठीक है. सो रिफरेंट पावर इज अ रिजल्ट ऑफ परसीव अट्रैक्टिवनेस, वर्दीनेस एंड करिश्मा. सो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग पावर. रिफरेंट पावर, इसका मैकेनिक्स क्या है कि एडमायरेशन लीड्स टू इमोशनल कनेक्शन, देन लीड्स टू वॉलेंटरी इन्फ्लुएंस. दिस इज मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग एंड पॉजिटिव पावर. फॉर एग्जाम्पल, योर फेवरेट टीचर और रोल मॉडल. ठीक है. देन इंफॉर्मेशन पावर इज एक्सेस टू नॉलेज. दिस इज एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, टेक सेवी अगर आपका फ्रेंड है तो आप एवरीवन फॉलोज देयर एडवाइस अबाउट एप्स एंड एग्जाम फॉर्म्स. सो दिस इज इंफॉर्मेशन पावर. कनेक्शन पावर इज एक्सेस टू पीपल. द कम्युनिकेशन पावर. फैक्टर्स influencing leadership style. So these are the factor influencing leadership style: the personality of leader, personality of team member, nature of organization and nature of task. Personality of leader जो है वो confidence, leadership style उसकी अच्छी होनी चाहिए. For example, टीचर A जो है वो काम है, ठीक है, एंड एम्पैथेटिक है, और टीचर B जो है वो स्ट्रिक्ट है और जो है कंट्रोलिंग है. सो सेम स्कूल, same student but different leadership style. Personality of team member, need for responsibility, skill development. अगर कोई जो है क्रिकेट टीम कैप्टन है, सो जो विद एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है उसको जो है फुल ऑटोनॉमी देगा, और अगर विदाउट एक्सपीरियंस है सो उसके लिए दे गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस. सो दीज आर द पर्सनैलिटी ऑफ टीम मेंबर. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. नेचर ऑफ टास्क इज डिपेंड ऑन for example complexity and importance. like during emergency डॉक्टर जो है वो give direct orders, और अगर हम उसके पास रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं तो he give friendly और explanatory advice. कर्ट लिविन 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. कर्ट लिविन की 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप. पहली है ऑटोक्रेटिक, जिसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं. डेमोक्रेटिव जो पार्टिसिपेटिव है. देन थर्ड इज लेस इज फ्री फेयर, दिस इज फ्री रीजन. ऑटोक्रेटिक बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज इज अ लीडर रिटेन मैक्सिमम पावर. सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? लीडर के पास है. एंड गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट कंप्लीट ओबीडियंस. इनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कंप्लीट ओबीडियंस. फोकस ऑन लीडर सेल्फ, अपने पे फोकस. डेमोक्रेटिव इज डिसीजन मेकिंग इज अ टीम एफर्ट, वर्किंग टुगेदर. नो डिसीजन इज फाइनल अंटिल एम्प्लॉय अग्री. कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होगा जब तक एम्प्लॉय अग्री नहीं होंगे. सो दिस इज बेस्ड ऑन कंसेंसस पे. लेस इज फ्री इज एम्प्लॉय हैव कंप्लीट पावर फॉर गोल सेटिंग. ठीक है. लीडर्स इन्वॉल्वमेंट इज मिनिमल, मिनिमम सबसे ज़्यादा कम इन्वॉल्वमेंट जो है वो लीडर के इसमें है. एम्प्लॉय बिकम सेल्फ सफिशिएंट. सो ऑटोक्रेटिव जो होती है इसमें जो है लीडर्स रोल क्या है? कमांडर की तरीके से है. ठीक है. इसमें फियर है, कंट्रोल है. ये डेमोक्रेटिव जो है ये गाइड की तरह प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. इसमें ट्रस्ट है, टीम वर्क है, ट्रस्ट एंड टीम वर्क. दिस इज लेस इज फ्री इज, इसमें लीडर जो है ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है. फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है पूरी. ठीक है. सो दीज आर द 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. लिकर्ट 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. लिकर्ट के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पहला एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव
देन फोर्थ इज पार्टिसिपेटिव. सो लीडर्स रिटेन ऑल पावर. पावर जो है सारी लीडर्स के पास है. हाई कंसर्न ऑफ टास्क है, लो कंसर्न ऑफ पीपल है और टॉप डाउन अप्रोच है. इसमें जो है हमारा फॉर एग्जाम्पल कि डू द वर्क एग्जैक्टली एज टोल्ड. इफ टारगेट आर नॉट मेट देन सैलरी विल बी कट. क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो ये काम है ये करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर जो है आपका जो है सैलरी कट हो जाएगी. ठीक है. बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, इसमें लीडर्स परमिट सम पार्टिसिपेशन बट मेजर डिसीजन रिमेन विद द लीडर. रिवॉर्ड्स यूज फॉर मोटिवेशन. इसमें रिवॉर्ड जो है मोटिवेशन के लिए दिया जाता है. बेसिकली इसमें केयर भी होती है और कंट्रोल भी है. I know what is best for you, follow my rules and I will support you. This is the example of benevolent authoritative. And consultative is, इसमें ट्रस्ट जो है हाई होता है. ये शेयर्ड है लीडरशिप स्टाइल. लीडर जनरली कंसिडर्ड एम्प्लॉय आइडियाज बट सेंट्रल डिसीजन मेकिंग पावर इज स्टिल लाइज विद द लीडर. पार्टिसिपेटिव इज कंप्लीट पार्टिसिपेशन. लीडर टेक्स कलेक्टिव डिसीजन विद एम्प्लॉय अप्रूवल. हाई ट्रस्ट, इसमें वेरी हाई ट्रस्ट होता है. लेट्स डिसाइड आर टारगेट टुगेदर. एवरीवन आइडिया मैटर. सबका आइडिया जो है वो उसमें मैटर करता है. इसका आउटकम इज हाई प्रोडक्टिविटी. हाई प्रोडक्टिविटी है, ये ग्रुप बेस्ड होता है. ठीक है. अ वेरी हाई ट्रस्ट. दीज आर द लिकेट 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. द लीडरशिप कॉन्टिन्यूम टेनेबॉम एंड स्किड ने जो है ये दिया है. दिस इज बेसिकली मैनेजर सेंटर्ड लीडरशिप एंड सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप. जितना ज़्यादा मैनेजर सेंटर्ड लीडरशिप होगा उतना कम जो है सबऑर्डिनेट सेंटर होगा. ठीक है. यूज ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजर जितना ज़्यादा होगा उतना एरिया ऑफ फ्रीडम जो है उतना कम मिलेगा. सो दिस इज बेसिकली जो है हाई एंड लेस, हाई और लो काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव एंड फ्रीडम. The evolution of leadership theory. Leadership theory is universalist के according behavioral contingency modern era. Universalist great man theory trait approach. Behavioral Ohio State Michigan studies managerial grade. Contingency situational model Fiedler path goal. Modern transactional and transformational. Very important. The universalist era great man and trait theory. So ग्रेट मैन थ्योरी कार्लेल 1949. ये कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड. लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं ना कि बनाए जाते हैं. ग्रेट लीडर अराइज व्हेन देयर इज अ ग्रेट नीड. हिस्टोरिकली फोकस्ड ऑन मेल थ्रू मॉडर्न इंटरप्रिटेशन. तो ये मेल पे फोकस करते हैं कि मेल्स आर द लीडर्स ओनली. सो दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, जिसकी वजह से जो है ये थ्योरी बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हुई है. ठीक है. क्योंकि वुमेन्स भी कई सारी हैं जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनमें थी. इसमें जो एग्जाम्पल गांधी, मंडेला, स्टीव जॉब्स. एंड ट्रेट अप्रोचेस बेसिकली आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक इनेट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. की ट्रेट्स क्या है? अडेप्टेबल होते हैं, कोऑपरेटिव, डिसिसिव, परसिस्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, डिप्लोमेटिक, सोशली स्किल्ड. बिहेवियरल एंड कॉन्टिजेंसी शिफ्ट. बिहेवियरल थ्योरीज लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, पैटर्न्स कैन बी एक्वायर्ड. सो ये कहते हैं कि लीडर्स जो है वो बनाए जाते हैं ना कि बॉर्न होते हैं. पैटर्न्स जो है वो हम अक्वायर्ड कर सकते हैं. ओहियो स्टडीज़ ये इनिशिएशन स्ट्रक्चर वर्सेस कंसिडरेशन की बात करता है. टास्क ओरिएंटेड वर्सेस पीपल ओरिएंटेड. मिशिगन स्टडीज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेड वर्सेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड. मैनेजरल ग्रेड जो ब्लेक एंड मोर्टन की है वो बात करती है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न ऑफ पीपल. कॉन्टिजेंसी सिचुएशनल थ्योरी. सक्सेस डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट. So, according to them, success depend on context, interaction between leaders, followers, task situation. Key models are Fiedler model, Hersey, Blanchard, path, goal theory. So, हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. It is just an overview. Transactional theory of leadership. Transactional is basically leadership is a transaction, means exchange between leaders and followers. लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होना. दिस इज एफर्ट एंड परफॉर्मेंस जो है
वो हमारा लीड करेगी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है। Operational mode is contingent reward. It link goal to reward, smart goals, management by exception, active and passive. Monitors for deviation and correct immediately and intervenes only if standards are not met. So contingent reward is basically reward is given only if performance meet expectation. जब performance जो है वो expectation को meet करेगी then this reward is given. But management by exception, एक्टिव में जो है वो आपका कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है। और पैसिव में क्या होता है, बीच में इंटरवेन करते हैं जब आप मिस्टेक कर लेते हैं, आफ्टर मिस्टेक जो है इंटरवेंशन होता है। An exchange process, leader clarifies role and task requirement. Relationship is not transitory and not emotional. Focus on obedience. So obedience पे based है। Transformational theory of leadership, the 4 I's, Reggio Bas, 4 I's क्या है? Idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration. So transformational leaders do not just exchange reward for work, they transform people's attitude, पीपल्स का जो है एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म करते हैं, वैल्यूज एंड मोटिवेशन, दे ट्रांसफॉर्म दीज। फॉलोअर्स गो बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट फॉर हायर गोल। सो आइडियलाइज इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये रोल मॉडल होता है बेसिकली। ठीक है। लीडर्स एक्ट एज अ रोल मॉडल विद हाई मोरालिटी एंड एथिक्स। So leaders is respected and admired. Idealized influence में inspirational motivation is vision. Vision इसमें जो है हमारा clear and meaningful vision होता है, inspire employees to take a new challenge and transcend self interest. Intellectual stimulation is stimulate intellectual abilities, encourages new outlook on old problems. So new ideas and questions are make so for new outlooks on old problems. Individualized consideration is pay attention to individual need and development. Individual need and development for their growth. This is for care perspective and this is for thinking. Comparative analysis, transactional versus transformational. ये रिस्पॉन्सिव होता है ट्रांजैक्शनल, प्रोएक्टिव होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, वर्क्स विद इन एग्जिस्टिंग कल्चर, ये चेंज करता है कल्चर को, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, इसमें हायर आइडियल्स एंड मोरल वैल्यूज है, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट, ट्रांसेंड सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द ग्रुप। सो ट्रांजैक्शन लीडर्स जो होते हैं वो हमारे मैनेज वर्क, ये वर्क को मैनेज करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल दे चेंज पीपल। Alternative lenses, charismatic leadership, culture-based leadership, psychodynamic approach. So this is based on gift. Leader act as an influencer through personal vision, energy and conviction. For example, Robert House. So leadership work through personal charm, vision, emotional appeal. इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनका स्ट्रॉन्ग विजन होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, powerful communication, emotional connection, risk taking. Basically leaders inspire people emotionally, और यहाँ क्या है, कल्चर बेस्ड लीडरशिप है, दे एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन वैल्यूज पे, ठीक है। वर्क इज गाइडेड बाय कल्चर, करेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स इज सीन एज अ डेवलपमेंटल एलिमेंट ऑफ द सोशल ऑर्डर। सो लीडरशिप स्टाइल इज शेप्ड बाय कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन एंड सोशल नॉर्म्स। What is effective in one's culture may not work in another. For example, अगर हम
जो है जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो एल्डर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल होगी, और अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. Psychodynamic approach is basically based on the Freud psychoanalytic theory, focus on unconscious and past experiences. Leaders must understand hidden feeling and motives. Goal is emotional buy-in. So this leadership is influenced by unconscious motives, emotions, childhood experiences, and personality dynamics. This approach comes from psychoanalytic theory Freud. फ्रॉइड की साइको डायनेमिक अप्रोच की मैंने जो है वीडियो बनाई है, आप उसको जा करके देखिए.